ಸಮಿತಿಯ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದಂತ ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಜೈ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ವಲಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಹಮ್ದು ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಕುಲ್ ಹುವಲ್ಲಾಹ್. ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಬಿಡಿ. ಗಾಂಧಿನಗರದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿಭಾಗದ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೂತನವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಮೈನಾರಿಟಿ ವಿಭಾಗದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿದಾಯತುಲ್ಲಾ ಅವರೇ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರೋಣ ಅವರೇ, ಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಘುನಾಥ್ ಅವರೇ, ವಾರ್ಡಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರೇ, ಎಸ್ಸಿ ಘಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಏಜಾಜ್ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ವಾರ್ಡಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಬಾಲು ಅವರೇ, ಮಿಲಿಟರಿ ಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಅವರು, ತಬ್ರೇಜ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 5 ಚುನಾವಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರ್ದು. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಬಹಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕ್ರಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಕ್ರಮ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತಬ್ರೇಜ್ ಅವ್ರ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೈನಾರಿಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. हमारे इधर नया एक हमारे गांधीनगर ब्लॉक कांग्रेस का नया अध्यक्ष उनका अधिकार स्वीकार समारंभ था इधर. सो उस प्रोग्राम अनवर पाशा जो बने हैं उनका प्रोग्राम और हमारे सब लीडर्स भी आए थे और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी अध्यक्ष हिदायतुल्ला वो भी आए थे. तो आज का उनका प्रोग्राम हुआ और हमारा जो 18 मस्जिद के सब सदर साहब वो भी आए थे और सब इधर लोग भी बहुत बड़ी संख्या से भी आए, क्योंकि माइनॉरिटीज़ मतलब मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जैन सब माइनॉरिटी के अंदर आते हैं. तो उनका जो अभी माहौल जो अभी इस देश में बन रहा है, तो उनके ऊपर जो दबाव डाल रहे हैं बीजेपी और उनके खिलाफ एक वातावरण निर्माण करने गए हैं बीजेपी के हिंदू और बीजेपी और मुसलमान को बांटने का, हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन को बांटने का काम जो कर रहे हैं वो बहुत गलत काम बीजेपी कर रहे हैं और ये हेट को पूरा देश में फैला रहे हैं. और देश का हालत क्या है, अभी लोगों को पास नौकरी नहीं है, इतना प्राइस राइज हो रहा है, बहुत मुश्किल के से लोग उनके जीवन को आगे लेकर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. इतनी हालात ठीक नहीं है. इस हालात के बीच में पूरा डाइवर्ट करने के लिए ये इश्यूज़ जो बीजेपी लेकर आ रहे हैं कि पूरा देश के लिए बहुत एक डेंजरस सिचुएशन आ रहा है. तो कांग्रेस पार्टी देश को एक करने का कोशिश हमेशा किया है और आज हमारा जो अभी इधर माइनॉरिटी का ब्लॉक है उनका भी काम यही होगा कि सब लोगों का साथ लेकर और जो एक
बीजेपी का जो क्या है, क्या बोलते हैं, प्रोवोकेटिव काम जो करते हैं बीजेपी, उसके खिलाफ कैसे हम उसको रोकें, और इस हालात में हम सब मिलकर, हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलकर कैसे जाना, ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के ऊपर है और कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स के ऊपर है। सर, ये नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल जब गल्फ से, जब उधर से लोग पूछने शुरू किया, तब किया, मतलब भारत के मुस्लिम लोगों के बात नहीं माने हैं, गल्फ के मुस्लिम लोग मान रहे हैं बीजेपी, क्योंकि उनके साथ बिजनेस का ये है ना। तो ऐसे लोग जो डिवाइड करते हैं और ऐसे गलत बात बोलते हैं, तुरंत उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। तो ये इनका जो उनका दो शक्ल है बीजेपी का, एक दूसरे को सब हिपोक्रेसी है। तो इसीलिए मैं इतना ही मेरा इतना ही एक रिक्वेस्ट है कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हिंसात्मक प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। हमारा लड़ाई इस गवर्नमेंट के खिलाफ करना है, लेकिन विदाउट वायलेंस हमको करना चाहिए, पीसफुली करना चाहिए। लेकिन बीजेपी का जो रास्ता जो ले रहे हैं, ये पूरा देश के अंदर अभी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश को डिवाइड करने का काम शुरू कर दिया है। तो बहुत गलत काम कर रहे हैं। का प्रोग्राम माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हमारे अकरम साहब को गांधीनगर ब्लॉक से माइनॉरिटी प्रेसिडेंट बनाया गया है, अकरम भाई को। वो मुबारकबाद देने के लिए इतने आदमी जमे हुए हैं, और ख़ासतर हमारे श्री दिनेश गुंडूराव साहब एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं, सब माइनॉरिटी को जमा के अकरम भाई को चार्ज दे रहे हैं। आज माइनॉरिटी प्रेसिडेंट बने, आज उसका चार्ज है। आज तो कैसे कांग्रेस में और माइनॉरिटीज़ कैसे देख रहे हैं आप? क्या है, मौके मिल रहे हैं आपको पार्टी में? नहीं, क्या हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। यहाँ श्री दिनेश गुंडूराव साहब पूरे माइनॉरिटी को साथ में लेके चल रहे हैं, और हम लोग सब साथ में हैं। और अभी समझो ये अकरम भैया के गांधीनगर के हैं, काटनपेट के ब्लॉक के हमारे ज़मीर भी हैं। तो बहुत अच्छे से यहाँ हमारे दिनेश गुंडूराव साहब बहुत साथ दे रहे हैं, हम लोग को सब साथ में लेके चल रहे हैं। हम लोग सब साथ में हैं, और हमेशा हम लोग तो कभी भी कांग्रेस के साथ में हमेशा है। तो इलाके में माहौल कैसा है यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा है माहौल यहाँ का। सब कांग्रेस के इसमें है, बहुत अच्छा है माहौल यहाँ का। कोई परेशानी और तकलीफ नहीं, अल्लाह का करम ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मोहल्ला के हिंदू मुसलमान सब भाई भाई जैसे रहते हैं। ये मोहल्ले की बहुत बड़ी हिस्ट्री भी है। क्या नाम? रामचंद्रपुरम। यहाँ बहुत बड़ा अल्लाह का करम है। गांधीनगर क्षेत्र रामचंद्रपुरम है ये। यहाँ सब हिंदू मुसलमान सब भाई भाई जैसे हैं। यहाँ बहुत सब हम लोग सब बहुत खुश हैं सबसे, ना हमारे से ना उनको परेशानी, ना उनसे हमारे को परेशानी। हम लोग सब भाई भाई जैसा हंसी खुशी से रहते हैं, साथ में रहते हैं। तो आप कांग्रेस पार्टी में रहते हैं, क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं? अभी सरकार कांग्रेस की बनना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हम लोग श्री दिनेश गुंडूराव साहब को जिताना है, और साथ में पूरे कर्नाटक में कांग्रेस आना बल्कि हम लोग की सभी ख्वाहिश है और कोशिश भी है। इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद भी है कि कांग्रेस पार्टी आएगी। तो कांग्रेस ही क्यों, और भी कई पार्टियां हैं? और भी पार्टियां हैं, लेकिन हमारे जो यहाँ तक जो तरक्की किए हैं, तो और भी पार्टियां अभी आके हैं। उससे पहले कोई नहीं थे। जब पहले हमारे यहाँ सुई नहीं बनती थी, आज हवाई जहाज़ बन रही है। तो ये सब कांग्रेस की ही देन है ना। सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। हकीकत जो है हकीकत ही है ना। अभी बोलने के लिए तो बहुत झूठ बोलने के लिए तो बहुत मुंह है, बहुत कैसा भी बोल सकता है झूठ। जो सच्चाई है ना। जो चंद ताकतें समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बांटने की कोशिश कर रहे हैं, एक न एक इश्यूज यहाँ पर पैदा हो रहे हैं, इस पर क्या कह रहे हैं आप सब? इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कारण है। ये लोग ठीक से कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ये सब बंद होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट भी सोई हुई है, स्टेट गवर्नमेंट भी सोई हुई है। इसके लिए ये ताकतें सभी मजबूत हो रही है। जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी साहब, यहाँ के बम्बई सर, ये दोनों थोड़ा स्टिक से काम करेंगे, किसी कौम के ऊपर कोई कुछ नहीं बोलना, अपनी अपनी कौम से अपने हिसाब से मोहब्बत करो, उसको कौम में किसी को कुछ बोलना नहीं बोल के ये गवर्नमेंट कुछ आदेश करेगी ना, तो सब ये रहेंगे। अगर जब अभी कोई दूसरा आदमी किसी कौम को बोला तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, बराबर से केस लगाएंगे, तो दूसरा आदमी डरेगा बोलने के लिए, माहौल नहीं बिगड़ेगा। यहाँ हम लोग क्या चाह रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर सब मिलजुल के रहना, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। या किसी को भी तकलीफ हो तो तकलीफ ही है ना, या उनको तकलीफ हो तो भी हमारे को तकलीफ है, हमारे को तकलीफ हो तो उनको भी तकलीफ है ना। हम लोग यहाँ हिंदू मुसलमान सब भाई भाई जैसे हैं, ऐसे ही अमन और शांति से रहना बल्कि हमारी ख्वाहिश है। यहाँ आज जो है, आज का दिन
यहाँ पर हम आके गांधीनगर में एक माइनॉरिटी सेल का एक ब्लॉक का चेयरमैन को हमें नियुक्त किया है। जो पहले एक ब्लॉक का चेयरमैन थे तो वो एक्टिव में ज़्यादा नहीं थे, एक्टिविटी में ज़्यादा कम थे, तो इस वजह से हमें एक नए और एक जो माइनॉरिटी को जो ताकतवर और जो सबको भी साथ लेके चलता है उसको हमें एक अकरम पाशा बोल के एक हैं शख्स हैं, उनको हमें यहाँ को आज पोस्ट देकर है माइनॉरिटी सेल से। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन किया था कि क्या मुद्दे पर बात हुई, बहस हुई। देखिए अब यही देखिए नुपुर शर्मा की बात आती है, कभी बीजेपी की बात आती है, कभी आरएसएस की बात आती है। ये तीनों का मुद्दा अलग अलग है, इनका विजन्स भी अलग है। कभी वो बोलते हैं कि हम मंदिर में कोई, हमें मस्जिद में कोई खोजना नहीं चाहिए बोल के आरएसएस लोग बताते हैं, उनके प्रमुख बताते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं बीजेपी लोग, क्या करते हैं उन्हीं के लोगों को यहाँ पर उत्साह के क्या करते हैं तो उनके प्रवक्ता को भेज के हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करते हैं। और उनको करने के बावजूद हम तमाम यहाँ पर प्रोटेस्ट किए, सब व्हाट्सएप में गया, फेसबुक में गया, ट्विटर में गया, सबकी यही मांग थी कि उनको निकाला जाए और उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। तो ये न काम नहीं हुआ, 8-10 दिन के बाद उनको निकाला गया। और वो भी क्या बोल के निकाला गया, तो वो पार्टी में थे ना, वो स्पोक्स पर्सन थे, लेकिन क्या हुआ उनको सलाखों के पीछे डालना था, सलाखों के पीछे नहीं डाला। ये हुकूमत कौन कर रहे हैं पता नहीं, क्या आरएसएस चला रही है या बीजेपी चला रही है या बीजेपी के या दूसरे लोग वो चला रहे हैं, हमको पता नहीं। तो इसलिए हमारी ये मांग है, देखिए जहाँ पर भी हो हमारे जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है, हमारे माइनॉरिटीज़ के जो है इखलाक का क्या हुआ, इखलाक लिंचिंग का जो कहीं पर जाइए लिंचिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। जहाँ पर कोई मंदिर के पास जाके तरबूज अगर से रख के बेच सकता है, वो अपनी रोजी रोटी के लिए दुकान रख के खोल के कर सकता है, तो उसके वो पूरे तरबूज उठा के फेंक देना चाहिए। ऐसा काम कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है हमारी एक सेक्युलर पार्टी है। हम जो है ये जो काम जो कर रहे हैं, ये मुद्दा उठा के ये जो अफवाहें फैला के हिंदू मुसलमान को बांटने का जो काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी कभी भी सेक्युलरिज्म का चाहती है और अमन और चैन चाहती है कांग्रेस पार्टी। इसीलिए जो है यहाँ पर हम जितने भी लोग हैं यहाँ पर हिंदू मुसलमान जैन क्रिश्चियन जितने भी हैं यहाँ पर माइनॉरिटीज़ में आते हैं, इन तमाम हमें एक भाई होके एकजुट होके हम काम करना चाहिए बोल के एक संदेश यहाँ से आज दिए हैं। 25 साल से हूँ साहब। हाँ बताइए। कांग्रेस लीडर था एक। हाँ। पहले मैं वाइस प्रेसिडेंट था, जनाब तबरेज साहब प्रेसिडेंट है। उसके बाद एक 10 साल उन्होंने थे, उसके बाद दूसरे हुए। अभी मौका दिए, सब आदमी मिलके मेरे को प्रेसिडेंट के लिए मदद किए। उसके बाद अभी मैं प्रेसिडेंट होके हूँ और मैं माइनॉरिटी प्रेसिडेंट ही नहीं, सबको लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर हिंदू भी है, मुस्लिम्स भी है, क्रिश्चियंस भी है, जैन भी है, हर एक जना भी है, सबको लेके चलने का कोशिश कर रहा हूँ साहब मैं। तो कैसे हालात कैसे हैं यहाँ पर? हालात तो इधर अच्छे हैं साहब, क्या भी नहीं। हालात के बारे में तो बहुत अच्छा है, साहब का तो इधर बहुत अच्छा है। ऑफिशियल जो जितना भी है वो साहब का है। माइनॉरिटीज़ के लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर? क्या भी तो प्रॉब्लम नहीं है साहब, अच्छे से अच्छा काम किए हमारे साहब। 2 करोड़ का काम स्कूल बना के देखे है हमारे को, स्कूल गवर्नमेंट स्कूल। हमारा दिनेश गुंडूराव साहब 2 करोड़ का हमारे को एक स्कूल बना के देखे है। अभी उर्दू इंग्लिश कन्नड़ा 3 भी है इसमें, खाली उर्दू नहीं, कन्नड़ा इंग्लिश उर्दू 3 भी है। तो और क्या काम होना है, क्या चाह रहे हैं आप? और क्या काम अच्छा होता कराएंगे साहब। अभी तो काम कुछ नहीं है ऐसा कराने का, है थोड़ा काम है, करा रहे इंशाल्लाह, कोशिश कर रहे हैं। साहब का तो कोसा भी काम को मना नहीं कर रहा है, हमें जो भी बोलता है वो काम करके दे रहा है साहब। ओके, तो हालात जो हैं स्टेट में और मुल्क में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, ये तो बीजेपी वाले का शादी से ना साहब। हाँ। वो आदमी बरोबर नहीं ना, क्या करना उनका झगड़ा कर, जब इलेक्शन आता है जब लड़ाना, ऐसा है आदमी इधर से भी। इसलिए हमें चाहते हैं इधर पूरे एक होके मुस्लिम एक होके काम कर रहे हैं। हमारे जनाब दिनेश गुंडूराव साहब के सका तो हमारा कर्नाटका में 224 MLA है, ऐसा MLA होना हमारे को, हमारी कोशिश ये है। कोई भी जात नहीं साहब, कोई सी भी जात पात हमारे इसमें कोई भी नहीं है, हमारे दिल में सब हम एक है। देखो इधर अभी जो जमा है, मुस्लिम भी जमा है, क्रिश्चियंस भी जमा है, हर एक जात का आदमी भी इधर है साहब। और क्या मैसेज दे रहे हैं आपके? क्या भी नहीं साहब, हम एक होके काम करना, दिनेश गुंडूराव साहब को जिताना, एक तरह रह के एक ही तरफ से वोट करना करके हमारा इरादा है साहब।
मेरा सर्विस आके 50 साल हो गया कांग्रेस में। कांग्रेस के इतिहास में इतना खराबी दिन ये 10 साल के अंदर ये पहली बार आया। आदमी लोग भूखा मर रहे हैं, काम नहीं है। हाँ, कितना बलिदान हो गए हैं ये पूछो मत। ये बीजेपी सरकार आने के बाद इतना गरीब को जात को लड़ाई करते हैं। कौन सा जात है ये? सभी एक ही जात है। हिंदुस्तान के कौन है? सब भी हिंदुस्तानी है। उनका रिवाज उनकी तरफ से चलता है, उनका धर्म उनका धर्म से चलता है। अभी तक चलने का आया। इन लोग ये आरएसएस लोग है ना, इन लोगों को अभी मंदिर में मस्जिद है बोलते हैं। अभी इन लोग क्या करेंगे? अभी मंदिर में मस्जिद है करके बोलेंगे। इसको रिवाज बनाने का कौन है? इन लोग ही बनाते हैं। लड़ाई करके पूरा हिंदुस्तान बिछड़ना है।